Children, in today's class, I shall start with try these on page 149 on the topic fractions. Question number 1. Which is a larger fraction? Now we have been given two fractions. We have to find out which one is the larger. So see, when we see the denominators are same. When the denominators are same, we compare the numerators. So 8 is bigger than 7. So here we write 7 upon 10 is smaller than 8 upon 10. Or we can write 8 upon 10 is bigger than 7 upon 10. Okay? Here, let us see here. Here denominator is 24 in both the fractions. Compare the numerators. 13 is bigger than 11. So we write here 13 upon 24 is bigger than 11 upon 24. Let us see here. Denominators are same. Compare the numerators. 17 is bigger, so we will write 17 upon 102 is bigger than 12 upon 102. Is this clear? Now there is a question. Why are these comparisons easy to make? Because the given fractions are like fractions. In which smaller the numerator, smaller the fraction. Smaller the numerator, smaller the fraction. ठीक है, और मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, बस जस्ट वर्बली बता रही हूँ कि स्मॉलर द न्यूमरेटर स्मॉलर द फ्रैक्शन का मतलब ये है कि इनके डिनोमिनेटर्स सारे फ्रैक्शंस के सेम हैं. तब ये ऐसा होगा कि जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन स्मॉल होगा. राइट. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. Write these in ascending, also in descending order. These fractions are given. We have to write them in ascending and descending order. So denominators are same. So first we write in ascending order. Ascending order मतलब छोटे से बड़ा. डिनोमिनेटर तीनों के सेम है. ठीक है. तो स्मॉलर द न्यूमरेटर स्मॉलर द फ्रैक्शन. तो सबसे छोटा न्यूमरेटर 1 है, पहले ये आएगा. उसके बाद उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 5 है. तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर. और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा. ठीक है. तो हम इसको रिवर्स कर देंगे. पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे. विल राइट 5 अपॉन 8 bigger than 3 upon 8 bigger than 1 upon 8. All right. Now coming to the second part. Here the denominators are same, so we compare the numerators. पहले लिखते हैं ascending order में. सबके डिनोमिनेटर्स 5 हैं, तो हम लिख लेते हैं 5 5 5 5 एंड 5, पाँचों के. ठीक है. अब स्मॉलर द न्यूमरेटर स्मॉलर द फ्रैक्शन. सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है? 1. उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 11. अब आप ये लेस देन का साइन लगा दो. ठीक है. तो यू हैव अरेंज्ड दीज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. नाउ इन डिसेंडिंग ऑर्डर. बड़े से छोटा रिवर्स कर दोगे ऑर्डर को. 11 अपॉन 5 पहले, फिर 7 अपॉन 5, फिर 4 अपॉन 5, फिर 3 अपॉन 5, फिर 1 अपॉन 5. तो हम लिखेंगे 11 अपॉन 5 बिगर देन 7 अपॉन 5, देन 4 अपॉन 5, देन 3 अपॉन 5 एंड देन 1 अपॉन 5. We say 11 upon 5 is bigger than 7 upon 5. 7 upon 5 is bigger than 4 upon 5.
4/5 is bigger than 3/5 and 3/5 is bigger than 1/5. Is it clear? Now we come to the C part. In C part, let's see. Again here the denominators are same. So we compare the numerators. First in ascending order. There are 5 fractions. तो हम डिनोमिनेटर सबके सेम लिख लेते हैं. अब न्यूमरेटर्स, स्मॉलर द न्यूमरेटर स्मॉलर द फ्रैक्शन. तो सबसे छोटा कौन सा है? 1, फिर है 3, फिर है 7, फिर है 11, फिर है 13. ठीक है, लेस दैन का साइन लगा दो सब जगह. ठीक. So 1/7 is less than 3/7 is less than 7/7 is less than 11/7 is less than 13/7. ठीक है. Now coming to the descending order. Descending order में उल्टा कर दो. 13/7 is bigger than 11/7. 11/7 is bigger than 7/7. 7/7 is bigger than 3/7 and 3/7 is bigger than 1/7. All right. So we have arranged the fractions in descending order. Okay. Now we come to try these on page 151. Arrange the following in ascending and descending order. अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या है, सारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है मगर न्यूमरेटर सबके सेम है. ठीक है. तो हमने क्या पढ़ा था, अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों और न्यूमरेटर्स सेम हों तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा है. तो अब देखो इसमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है? इसका है. तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा है. ठीक है. तो अब हम इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में इन फ्रैक्शंस को. असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक. तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? 1/50. ठीक. अब उसके 50 से छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है? ये है 23. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/23. नेक्स्ट, उसके बाद वाला डिनोमिनेटर छोटा कौन सा है? 17. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/17. उसके बाद कौन सा है छोटा? 12. तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/12. 12 के बाद छोटा कौन सा है? ये 9 डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/9. 1/9 के बाद छोटा कौन सा है? 1/7. और उसके सबसे छोटा कौन सा है? 1/5. ठीक है. एक बार काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7. इसका मतलब हमने सारे फ्रैक्शंस को अरेंज कर दिया. सो दिस इज़ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस. एक बार रिपीट कर रही हूँ. अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों और न्यूमरेटर्स सेम हों तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है. ठीक है. तो सबसे बड़ा 50 था, उसके बाद 23, उसके बाद 17, उसके बाद 12, उसके बाद 9, उसके बाद 7, उसके बाद 5. तो हमने विद न्यूमरेटर्स 1 इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. नाउ कमिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब इसको उल्टा कर दो. जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा. ठीक है. अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा. तो उस हिसाब से 1/5 इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन. उसके बाद 1/7, उसके बाद 1/9, उसके बाद 1/12, उसके बाद 1/17, उसके बाद 1/23, उसके बाद 1/50. मैंने ये रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया. ठीक है. सो दिस इज़ द
A part of this question. Now, the next part of this question. This is the B part of the question. We have been given the fractions 3 upon 7, 3 upon 11, 3 upon 5, 3 upon 2, 3 upon 13, 3 upon 4 and 3 upon 17. Now we have to arrange this in ascending and descending order. So we arrange this in ascending order. The denominators are different and the numerators are same. So when the numerators are same and denominators are different, bigger the denominator, smaller is the fraction. तो इन सब में सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है? ये वाला डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है. तो इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है ये सबसे छोटा होगा. सो वी राइट हियर 3/17. देन 17 के बाद बड़ा कौन, इससे छोटा कौन सा है? 13. सो 3/13 इज द नेक्स्ट. देन उसके बाद दिस वन 3/11 इज द नेक्स्ट. अब 11 के बाद कौन सा आ रहा है? दिस वन 3/7. एंड आफ्टर 3/7, 7 के बाद क्या है? 5 वाला 3/5. उसके बाद देखो कौन सा है, उसके बाद आ गया ये वाला 3/4. एंड देन नेक्स्ट इज 3/2. ऑल राइट, let us count 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. So we have arranged all these fractions in ascending order. Now we write the fractions in descending order. We reverse the order. We write it as 3/2, then 3/4, then 3/5, then 3/7, then 3/11, then 3/13, then 3/17. ठीक है. इसमें क्या है? स्मॉलर द डिनोमिनेटर, बिगर द फ्रैक्शन. बिगर द डिनोमिनेटर, smaller is the fraction. ठीक है. So we have arranged these fractions in ascending order and descending order. All right. So with this I wind up my class. In the next class I shall start with the next topic.